need to go across to an important voice. But before that, the police say the violent incident happened outside a liquor when in Dehradun. They say that Chakma brothers ran into an intoxicated group of 6 people and there was an argument. That's the version coming in from SSP Dehradun. He's described this as a hot clash. Aman continues to stay on with us. Aman, you were just highlighting what the police version so far has been, but this is in stark contradiction to what the family claims. Do we also have any witnesses who've gone on to say this was a result of racial abuse? Well, the witness is itself the brother of Angel Chakma was along with him. Michael, who clearly in his complaint says they were racial slurs made against them, and that is why this happened. But the SSP is saying no, there is no evidence of racial slurs. In fact, he's saying that it was a hot clash due to some confusion, and the 6 people who attacked Angel were all inebriated. As I was pointing out earlier, Section 103(1) of the BNS has been invoked, which is the pertains to murder punishable with death or life imprisonment. Section 103(2) of BNS has not been invoked, which says when a group of 5 persons or more acting in a concert commit murder on the ground of race, caste or community, each member of child group will be punished with death or life imprisonment. So clearly, the police is not considering this as a case of racist crime, which the family is clearly saying. So there is clear contradiction between both the versions, and also big question marks on why this FIR was delayed by 3 days and why the main accused has still not been arrested even 3 weeks after the crime happened. Okay, so we put out the Dehradun police's version. Let's go over to a guest who's going to be talking about what the family thinks and feels and how they think justice is being denied. Angel Chakma's maternal uncle, Momin Chakma, joins us on the broadcast. Good morning to you, sir. Thank you for taking out the time. Want to begin by first paying our condolences. जी, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा पहले से ही जी। मैं एंजल का जब इलाज चल रहा था तब मैं उधर ही था, मतलब देहरादून में ही गया था। मैं 10 तारीख को मैं पहुंच गया था उधर। तो उधर पहुंचने के बाद हम लोग को पता चला ये माइकल और उसका दोस्त कुछ लोग, मतलब वो लोग पहले से ही चाह रहे थे मतलब एफआईआर लॉन्च करने के लिए, लेकिन पुलिस लोग ने उन लोग को मतलब इग्नोर किया। मतलब बोल रहा था, पुलिस लोगों ने ऐसे ही बोला, मतलब तुम्हारे जैसे हजारों लोग आते हैं पुलिस स्टेशन में, हम किस किस का सुनेंगे, यहाँ से जाओ करके ऐसे उन लोग को बोल दिया। ठीक है, ये 10 तारीख की ये बात है। पहले तो वो लोग 10 तारीख को माइकल गए पुलिस के पास, कंप्लेंट दर्ज करी, पर पुलिस ने कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लिया, आप कह रहे हैं? यस दे जस्ट टोल्ड तुम्हारा जैसा यहाँ पे हजारों लोग आते हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए, हम किसका सुनेंगे, यहाँ से जाओ, यहाँ से और आओ मत, ऐसा करके बोल दिया उन लोगों ने, पुलिस ने। तो दे टोटली रिफ्यूज डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। दे टुक इट एज स्लाइटली। उसके लिए तो मतलब वो लोग मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे थे डायरेक्ट। उसके बाद हम लोग का इधर का जो प्रद्युत बर्मन मानेको जी है, उन लोग ने कांटेक्ट किया, हम लोग ने भी कांटेक्ट किया, मतलब ऊपर से प्रेशर क्रिएट करने के लिए। उसके बाद जाके उन लोग ने 12 तारीख को जाके एफआईआर लॉन्च किया उन लोग ने जी। और ये पुलिस जो बोल रहे हैं मतलब लिक्वियर शॉप के जो बाहर हुआ है उन लोग से मतलब कुछ फाइटिंग हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोग ने पहले से ही दे आर टोटली अननोन टू ईच अदर। तो माइकल का वर्जन क्या है मोमिन जी? We've been putting out what he said, but आप बताइए माइकल ने आपको क्या बताया, क्या हुआ था 9 तारीख को? माइकल मुझे बार बार ही बोल रहा था, मतलब वो लोग पहले बाइक पे बैठ गए थे, एंजल और वो दोनों। तो पहले उन लोग ने माइकल लोगों को गाली दिया, मतलब चिंकी पोंकी, मतलब चाइनीज करके गाली दिया, और शायद माँ बाप से भी गाली दिया होगा, गंदी गलौज किया होगा। पहले माइकल इग्नोर किया, मतलब ये छोड़ दो, मतलब इन लोग को बोलने दो। पहले उसने इग्नोर किया, मतलब ही ट्राई टू इग्नोर देम। बाद में वो लोग ज्यादा गाली दे रहे थे बोल के वो जाके सिर्फ मतलब बोला, भैया हम लोग को ऐसे क्यों बोल रहे हो आप लोग, ऐसा मत बोलो ना, अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें ही उसको कारे से मार दिया माइकल को। तो माइकल को जब मारा, ऑब्वियसली छोटा भाई को मार रहा है, बड़ा भाई तो देख के नहीं रहेगा, तो वो जाके भी बोला मेरा भाई को मत बोलो ऐसा करके, तो उसको भी उधर से लोग ने मार दिया। और पुलिस लोग जो बोल रहे हैं मतलब मेन एक्यूज फरार है। एंजल का मौत सिर्फ चाकू मारने से नहीं हुआ है मैडम, उसका करा से मार के ये गला भी तोड़ दिया है। ठीक है, गला पे हेड पे पूरा मारा है। तो एक आदमी तो चाकू मारेगा, तो दूसरा लोग तो उसको कारे से मार रहे थे ना मैडम, पूरा मार मार के उसका, जब वो गिर गया था मिट्टी पे तब भी मार रहे थे उसको मैडम। और क्या माइकल ने, ये पुलिस लोग, मोमिन जी, क्या माइकल ने बताया कि ये जो 6 लोग थे, जो 6 अक्यूज थे वहां पे जो उपस्थित थे, क्या उन्होंने शराब पी हुई थी? वर दे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल? उस पे कोई जानकारी? हाँ
वो लोग मतलब वो तो दिख ही रहा है सीसीटीवी में, वो लोग पहले पार्टी किया, उसके बाद शायद और लेने आया लिक्विड शॉप पे, वो लोग टोटली ड्रंक थे। ये भी तो मतलब पुलिस लोग तो इसको भी ले सकता है, वो लोग तो माइनर बोल रहे हैं, माइनर लोग को कैसे मतलब अलाउ किया लिक्विड खरीद ले, वो लोग माइनर है तो वो लोग पूरा केस को ही घुमा रहा है पहले से, फ्रॉम द इंसिडेंट इटसेल्फ दे आर जस्ट मतलब दूसरा जगह से मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्पोज द केस, वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे बिकॉज वी आर नॉट लोकल, दे आर कोऑपरेटिंग विद लोकल। जी और मेन चीज तो यही है, मतलब खराब लगता है मैडम, मतलब जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे 100 लोग थे, कोई भी लेकिन बचाने नहीं आया मैडम, क्योंकि हम लोग चाइनीज थे, मतलब हम लोग मोमो खाते हैं, हम लोग चाइनीज है, हम लोग का आंख छोटा है, हम लोग का नाक छोटा है, इसलिए हम लोग को कोई बचाने नहीं आया मैडम। अगर एक पब्लिक भी आता तो आज हम लोग का बच्चा हमारे साथ होता मैडम। मोमिन जी, यही दुख है, पूरा एक डिले उसको पूरा हुआ भीड़ है में मारा एफआईआर जा रहा फाइल था। करने में। 9 को ये अटैक हुआ, 10 को माइकल ने कंप्लेन दर्ज करी, एफआईआर 12 को लॉन्च हुआ है और एफआईआर में भी एडमिशन नहीं है कि ये रेशियल अटैक था या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मर्डर किया गया था। अब इसे आगे कैसे लेके जाएंगे सर? मैडम हम लोग ने तो मतलब एफआईआर में लिख ही दिया है, हम लोग को जो टॉन किया है मतलब रशियल में मैडम चाइनीज मोमो ऐसा बोला है, चिंकी पोंकी बोला है, वो तो हम लोग एफआईआर में लिखा है, एफआईआर में ऑलरेडी मेंशन है उसमें, ठीक है मैडम। लेकिन हम लोग तो हम लोग ना माइकल ने लो पढ़ा है ना कोई लो पढ़ा है ना मैडम, जो पता चलेगा मतलब कौन सा दरार अगला है, कौन सा दरार नहीं लगाएंगे, वो लोग तो उसका ऊपर डिपेंड करता है ना मैडम, उन लोग के ऊपर। मोमिन जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वर्जन विद अस। You know, hopefully justice will come your family's way, but condolences once और again. मैं जी. और मैं एक बात बोलना चाहूंगा मैडम, ये लोग पुलिस लोग जो बोल रहे हैं ये रेशियल नहीं है, ये लोग मतलब मुद्दे को पूरा दबाने के ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि वही तो मतलब मेन तो मुद्दा वही है ना, रेशियल हुआ है। वो मेरा साथ भी हुआ मैडम, मैं जब गया था देहरादून, हम लोग जब सिलाकुई पुलिस स्टेशन में जा रहे थे ना मैडम, पुलिस स्टेशन में जा रहे थे, तब हम लोग कुछ बच्चे लोग से मतलब रास्ते में मिले थे, वो लोग क्या बोल रहे थे पता है मैडम, देखो चाइनीज पार्टी जा रहा है, चाइना पार्टी जा रहा है, ऐसा वो बच्चे लोग भी बोल रहे थे हम लोग को, उसको उन लोग तो 7-8 में पढ़ रहे होंगे ना, चाइनीज पार्टी जा रहा है बोल के डायरेक्ट बोल रहा है हम लोग को मैडम। ये भी दुख लगता है, ये भी हुआ हम लोग के साथ। मैं 2 दिन हुआ था उधर, हम लोग को चाइनीज बोल रहा है, वो लोग को कितना दिन से रहे बच्चे लोग, कितना दिन से पढ़ रहे हैं, वो लोग को कितना बार ये सामना करना पड़ रहा होगा मैडम, आप ही सोचिए। और अभी भी मेन अक्यूज पकड़े नहीं गए हैं मोमिन जी। मोमिन जी, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। मेन एक्यूज वो नहीं है मैडम, सब इक्वली मेन एक्यूज थे। ये भी उसमें भी पुलिस का केस हो सकता है, जो उसको ये लोग ने शायद भगाया है, शायद एफआईआर डिले करने के बाद इन लोग ने शायद उसको भगाया है और केस को गुमराह किया जा रहा है। मेन एक्यूज सब से कैसे मेन एक्यूज है, क्योंकि सबने मिलकर एंजल का गर्दन तोड़ दिया था। असलियत दबाई जा रही है आप कह रहे हैं, पर क्या आप मांग करेंगे? yes. क्या आप मांग करेंगे ये सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को सौंप दिया जाए केस? ऐसा कुछ निर्णय लेंगे हम लोग का ऑलरेडी डिमांड यही है मैडम, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, पुलिस को एक लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम दिया जाए, लाइक 4 आवर 48 आवर, उसके अंदर अगर ये लोग नहीं कर पाए तो हम लोग अनुरोध करें, मेरा डिमांड रहेगा केस आप लोग सीट को एसआईटी को फॉर्म कीजिए, नहीं तो एक सीआईडी को दीजिए आप लोग, यही हमारा डिमांड है जी। अगर उन लोग से नहीं हो पा रहे तो नहीं हो पा रहे जी, तो आप कह रहे हैं कि किसी तो प्रीमियर सीआईडी को देना चाहिए केस, नहीं तो एसआईटी को सीआईडी को सौंप दिया जाए केस, अगर देहरादून पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। मोमिन जी, थैंक यू जुड़ने के लिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वर्जन विद अस। आई डू वांट टू गो अक्रॉस टू स्मृति मिश्रा, माय कॉलीग who's joining us live from the attack site in Dehradun. Angel's maternal uncle Momin Smriti is saying that there were a lot of other people who were also present in the vicinity when the attack took place, but nobody spoke up, nobody stood up for both Michael and Angel. What is the version that you're picking up of the several people that you've interacted with so far? What can you tell us? Well, yes, we are standing exactly at that spot when, you know, where Michael and his brother Angel Chakma were attacked, and that is what we have been, you know, that was the statement that was given by Michael Chakma was that the duo was attacked, and before attacking them, the 6-member group had actually hurled racial slurs. Now, when we spoke to different members, you know, in fact, friends of Michael Chakma and Angel Chakma, what we got to know is that on the 10th of December,
entire group actually had gone ahead to lodge the FIR, but the police did say that, you know, these are things that happen on a daily basis and they are not going to lodge the FIR. And in fact, after that, the group went ahead. They, you know, got a help from a retired IPS officer. The IPS officer spoke to the, you know, police officials, and there was a kind of pressure which was put. After which, on 12th, after 3 days of actually, you know, on that day when the crime was committed, after 3 days of that incident, the FIR was finally lodged. Now, all that, the entire group, in fact, the entire Northeast Association, the student association, is saying that there were racial slurs, and in fact, and after which Michael Chakma was attacked, and when Angel Chakma, his elder brother, came to, you know, object that and to, safeguard his brother, that is when even Angel Chakma was attacked, brutally attacked with knives. And in fact, now they are saying is that what they demand is justice. They are completely disagreeing with what the police is saying. The police has refuted the claims of racial slurs. However, the entire group, the friends who, you know, who went ahead to lodge the FIR, they are saying that they clearly stated to the police that there were racial slurs which were used. However, the police did not mention it that in Not the, only in did the they FIR. fail to Now act they on demand time, justice. they've also downplayed the entire racial discrimination angle, and that's the one thing which is being reiterated by the family of Angel Chakma. Thank you so much, Priti, for joining us with all those details. It's a story we're tracking very closely here on CNN News 18. Heading into a very short break with that, we'll be right back with lots more.